Okay, hello and welcome everyone to this webinar series hosted by ENTgrity Advanced Care in collaboration with New Vision Eye Center. We have among us Dr. Shruti, who would be here to answer all your queries. And today our discussion would be revolving around Diwali and the precautions that we need to ensure in terms of eye care. So welcome, ma'am. Thank you, and happy Diwali to all of you. Happy Diwali to you too, ma'am. First of all, thank you so much for taking out time from your busy schedule, especially on a festival day, for our this webinar. Thank you so much. So, Just. yeah, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am. So, shall we begin with the questions? Yes. So, ma'am, just to kickstart the discussion, I just initially, out of curiosity, I had a very general question that when we perceive Diwali, it is all twinkling, it is all about lights, it is all about colors, brightness. So, if you can just let us know the entire phenomena behind the same, how our eye perceives it, how our mind perceives it, and why is it so looking so joyful to us? Why is it so positivity is all around? So it is perhaps because of color. So how does the eye perceive it? If we can throw some light on this. See, Diwali is the festival of lights, ठीक है? And Diwali जो है, it is a festival of togetherness. Okay, so togetherness will bring positivity, and obviously eyes need to be protected while enjoying the Diwali, but the eyes will perceive all the things as the mind is going to read. So Fair enough, ma'am. Okay, so just beginning with the main issues that whenever Diwali is there, so Diwali के साथ साथ हमेशा एक चीज को attach किया गया है, that is pollution. So हम दिवाली पे जब करें उससे पहले let's discuss this pollution factor because भले ही दिवाली ना हो but दिवाली का season जब around होता है, so it is very much prevalent कि pollution air में रहता ही है, and especially the area where we are situated, Delhi, very famous for the pollution. The AQI is like at all time high, hazardous and whatnot. So इस टाइम पे मैम क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड क्या क्योर हो सकता है ऑन द सी? पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली दिल्ली में वैसे भी बहुत ज्यादा है, बट इस समय दिवाली के टाइम पे और मौसम भी इस समय चेंज हो रहा है, तो पॉल्यूशन इज एट द पीक लेवल. ठीक है, तो आईज में बेसिकली जो सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं कि आंखों में लाली आ जाती है, गड़न चुभन, पानी आना और लाइट की सेंसिटिविटी होना. यही सारे कॉमन चीजें हैं जो पेशेंट्स फील करते हैं, एंड वन शुड बी कॉशियस रिगार्डिंग इट. बेसिकली दिवाली के टाइम पे एंड पोल्यूशन जब ज्यादा है तो उस टाइम पे ग्लासेस, प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करने चाहिए बाहर जाते वक्त, टू एंश्योर कि आईज आर प्रोटेक्टेड. सो मैम लाइक दीज नॉर्मल ग्लासेस जो हम पहनते हैं यही एक प्रोटेक्शन पे तरह एक्ट करते हैं या इज इट सम स्पेशल काइंड ऑफ आईवेयर? सी आइडली जो ग्लास हैं वो थोड़े बड़े साइज के हों, साइड से कवर्ड हों, ताकि पूरी तरह से जो है आईज कवर रहें, और जो भी हार्मफुल गैसेस एंड पोल्यूटेंट्स हैं वो आई को डायरेक्टली इफेक्ट ना करें. So that should be the main thing to be kept in mind. And बाकी लाइट सेंसिटिविटी एज सच यूवी रेज वगैरह तो होती नहीं है, तो दिस इज अ मिथ कि लाइट से उस तरह से एक प्रॉब्लम है, या दिवाली की लाइट से. यस, आपको बहुत तेज लाइट की तरफ ग्लेयर मतलब स्टेयर नहीं करना है, बट एज सच कोई यूवी रेज तो है नहीं उसमें, तो वो डायरेक्टली एज सच लाइट जो है आईज को इफेक्ट नहीं करेगी, बट द पोल्यूटेंट्स कैन. Okay, so to sum up what you said, it is basically कि अगर जब हम भी दिवाली से रिलेटेड कोई भी इशू अगर हमें हो रहा है, दिवाली के टाइम पे हो रहा है, तो it is more because of pollution or pollutants rather than any kind of sensitivity towards light, right? जी जी.
Okay, so ma'am, like हमारा तो सेंटर ऑलरेडी रन करता है, so if you can help me with any case जो आपने रिसेंट में देखा हो जो कि पोल्यूशन की वजह से किसी को इतना ज्यादा इशू हुआ हो, बिकॉज व्हाट आई फील इज पोल्यूशन हम जब भी करते हैं एनकाउंटर पोल्यूशन वर्ड को हम जब भी सोचते हैं वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आवर नेजल कैविटी, टुवर्ड्स आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हर चीज जो भी होती है वो यहाँ से नीचे तक के लिए हम देख रहे होते हैं, चाहे हम मुंह पे ध्यान दे रहे हो चाहे मास्क लगा रहे हो, बट हम आई को टाइम्स की हम उससे इग्नोर कर देते हैं सर, कि हमें ये चीज ऑलरेडी हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि उसकी वजह से चीजें एड अप हो रही हैं, प्लस पोल्यूशन और एक इशू कॉज कर रहा है। तो इफ यू कैन जस्ट नॉट फॉर एनी पर्पस की किसी को डराना है, बट या अगर हम एक तरीके से ये समझ पाए कि किस लेवल तक सीवियरिटी इसकी जा सकती है, तो शायद हम और अच्छे से ध्यान देंगे, हमारे ऑडियंस और अच्छे से ध्यान देगी। सो इफ यू कैन इलैबोरेट ऑन सच केस व्हिच यू एनकाउंटर्ड। केसेस तो ऑब्वियसली इस समय बढ़े हैं बहुत ज्यादा, जब से पोल्यूशन बढ़ा है। जैसे मैंने सिम्टम्स आपको बताए, एवरी सेकेंड केस जो हमारे पास आ रहा है वो पानी आना, गड़न चुभन, आंख में लाली, ये सारी चीजों से आ रहा है। इसके लिए सिंपल जो एक तरीका, एक तो मैंने प्रोटेक्टिव ग्लासेस बता ही दिया, दूसरा जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आती हैं वो जो है रेगुलर में अगर सुबह शाम डाला जाए तो काफी हद तक हम अपनी आईज को बचा सकते हैं। साथ में जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस वेयर करते हैं उनके लिए ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि वो इस समय कॉन्टैक्ट लेंस का यूज ना करें, क्योंकि एज सच भी कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है आईज को इरिटेट करते हैं, और इस समय जब वैसे भी इरिटेशन लेवल्स ड्यू टू पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम और क्रिएट कर सकता है। एंड प्लस जब भी आईज में इस तरह की इरिटेशन होती है तो टेंडेंसी होती है आंखों को रब करने। तो आई वुड एडवाइज कि आईज रबिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रब करते हैं आईज को तो जो भी प्रॉब्लम है वो एग्रवेट हो जाती है। प्लस सेकेंड, जो हाथ से आई में इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन ऑलरेडी आई में है तो रबिंग से वो इन्फेक्शन क्लियर भी हो सकता है। तो जो एक इन्फेक्शन कैचिंग टेंडेंसी है वो इस समय बढ़ी हुई होती है। तो बेटर है कि अगर कोई भी आप सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो बेटर देन सेल्फ मेडिकेशन आप किसी प्रॉपर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, तो दैट विल बी बेस्ट। और इन केस इफ आई टॉक अबाउट फायर क्रैकर्स एंड ऑल, तो उसके लिए भी जो है इन केस गॉड फॉरबिड किसी को इंजरी होती है तो फर्स्ट थिंग यही है कि आई रब ना करें और प्लीज सेल्फ मेडिकेट ना करें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं एंड देन द ट्रीटमेंट कैन बी स्टार्टेड। Definitely, ma'am, and thank you for this really insightful point कि जो लोग contact lenses wear कर रहे हैं they should avoid this at this time because already irritation cause हो रही होती है eye में and we are giving it an extra edge with this. Okay. और मैम एक और चीज लाइक फॉर एग्जांपल जब भी कोई चीज हमारी आंखों में पड़ती है या अगर गड़न भी हो रही है तो गड़न करने पे एक बहुत प्रेवलेंट प्रैक्टिस है जो कि मुझे याद है, मतलब मम्मी या कोई भी एल्डरली पीपल इन द हाउस दे यूज्ड टू टेल कि वो कॉटन का सूती कपड़ा कोई भी ले लो उसमें गरम फूंक मार करके एंड देन यू कैन जस्ट रब इट अराउंड योर आईज एंड आई डोंट नो व्हाई वो क्यों ऐसा होता था बट उससे काफी आराम भी मिलता था। आराम सो भी व्हाट मिल इज इट जाता ऑल था। अबाउट? सी डिपेंड्स, अगर सिर्फ इन्फ्लेमेशन है आई में, जैसे कोई फॉरेन बॉडी चली गई है आंख में और इरिटेट कर दिया उसने आई को कहीं ना कहीं और वो बॉडी निकल गई है, देन नॉट रियली वार्म कॉम्प्रेसेस, हम कोल्ड कॉम्प्रेसेस उसमें रिकमेंड करते हैं। कोल्ड कॉम्प्रेसेस विल हेल्प इन दोज केसेस। बट अगर कोई फॉरेन बॉडी स्टिकिंग है आई में किसी भी पार्ट पे, बीट कॉर्निया या कई बार लिड के नीचे भी फॉरेन बॉडी चली जाती है, तो उस केस में ये चीजें आराम नहीं देंगी एंड वो इरिटेशन परसिस्ट करेगी। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स डायग्नोसिस ऑफ फॉरेन बॉडी गेट्स डिलेड, एंड जब तक वो इरिटेशन रहेगा पेशेंट अपनी आंख खुजाता रहेगा, और खुजाने की वजह से कोई भी फॉरेन बॉडी है वो और डीपर पेनिट्रेट कर जाती है, तो हमारे लिए निकालना भी फिर उसको मुश्किल होता है। तो अगेन आई वुड से कि अगर आपको ठीक है, आप ऑब्वियसली एकदम से तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, इनिशियल अगर आपको कुछ टाइम में आराम नहीं मिलता तो डोंट वेट फॉर द सेकेंड डे और द थर्ड डे, आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाइए सो दैट बेस्ट ट्रीटमेंट और जो भी चीजें रिक्वायर्ड हो वो हम लोग कर सकते हैं। True that, man, true that.
ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनसाइट अगेन मैम। सो अब थोड़ा सा मैम दिवाली पे शिफ्ट होते हैं। आई फील नाउ इट्स टाइम कि हम मेन टॉपिक पे आए। जी। सो दिवाली में मैम जो मेरा सबसे मतलब जो मेरे साथ एक्चुअली हो भी चुका है इन पास्ट की, जनरली हम जब भी कोई भी फायर क्रैकर पकड़ रहे होते हैं या स्पेशली आई रिमेम्बर जो एक मेहताब होता था, इफ यू रिमेम्बर, मतलब एक जी। फुलझड़ी होती है, एक मेहताब होता है। मेहताब के साथ जनरली हमेशा मेरे साथ ही केस हुआ है कि नो मैटर विच ब्रांड आई लुक आफ्टर, बट वो आखिरी में फटता जरूर है। एंड जब वो फटता था तो हम्म। कोई ना कोई चिंगारी ऐसा होता था कि आंख के पास आके लगी है आपके। या जो भी है, हम्म। मतलब इट इट एक्चुअली हैज कॉज्ड इरिटेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स। कई बार कहीं पे भी लग जाता था तो जल जाता था, एंड कई बार आंखों में भी जाने के चांसेस होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आई हाँ गेस जी। काफी लोगों के हाँ। साथ हो रखा होगा। सो व्हाट इज द प्रिकॉशन इन दिस केस, प्लस क्या अगर ऐसा होता है तो हम क्या क्योर कर सकते हाँ, तो देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है, तो पहले तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है कि कोई इंजरी हो आंख में। तो उसके लिए सर्टेन चीजें ये हैं, स्पेशली बच्चे हैं उनको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट देम कि बच्चों को थोड़ा सा काउंसिल आप पहले से करके रखें कि क्या क्या चीजें, मतलब ऑब्वियसली आप रोक तो नहीं सकते हो बच्चों को, बट हाँ जो भी करें वो प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो भी क्रैकर्स हैं वो आउटडोर जलाएं, घर के अंदर बिल्कुल भी कोई भी क्रैकर का यूज नहीं करें। बाहर ओपन स्पेसेस में जलाएं ताकि फायर कैच करने का जो है टेंडेंसी कम हो। देन सेकेंडली, हाथ में लेके कोई भी क्रैकर बर्न नहीं करना है। ठीक है, या तो 1 आर्म डिस्टेंस एटलीस्ट क्रैकर और आप में होना चाहिए। जब भी कोई अनार है या इस तरह की कोई भी चीज जला रहे हैं तो जो स्टिक है जिससे जला रहे हैं वो स्टिक लंबी होनी चाहिए, जितना दूर हो सके उतना जो है आपने डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अपना। तो उससे काफी हद तक चांसेस हैं कि यू कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। देन जो भी दिया है और कैंडल्स आप जला रहे हैं वो अपना कर्टन्स या इन सब चीजों से दूर रखिए ताकि वो फायर ना कैच करें। देन thirdly, the clothing which you are wearing, just if possible जो है सिंथेटिक नहीं होना चाहिए एंड फ्री फ्लोइंग नहीं होना चाहिए। जी, लूज कपड़े जैसे पहने जो कि जमीन को टच कर रहे हैं, या फिर इजिली इनफ्लेमेबल होते हैं, तो वो अवॉइड करें। स्टिक टू कॉटन क्लोथ्स, so those things should be kept in mind. हैं? Okay, that was around prevention, ma'am. And अगर ऐसा कुछ हो जाए God forbid, so what should be the first initial stage, the steps we should take, जो कि हम कर सकते हैं, take care कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ हमने जी, encounter किया? हाँ, देखिए, आँख के अंदर तो छेड़ने की खुद से कोशिश मत करिए। बाहर बाहर अगर आपको कोई फॉरेन बॉडी या कुछ दिख रही है तो उसको कोल्ड वाटर से क्लीन करिए। ठीक है, एंड अगेन आई रबिंग नहीं करिए, क्योंकि अगर कोई चीज अंदर है तो वो और अंदर चली जाएगी। एंड आँख के अंदर आई वुड से पानी ना लगाइए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन होगा तो वो पानी से बढ़ जाता है। तो Okay, बेटर है बाहर बाहर आप क्लीन कर लीजिए। एंड इफ यू फील कि अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है देन बेटर विजिट अ डॉक्टर। definitely. अच्छा मैम, whenever we go after this rubbing factor या जो भी चीजें होती हैं, so I have seen कि मतलब apart from this Diwali thing also, कि in general भी लोग क्या करते हैं, there are wipes in the market, जिसमें I हम्म। don't know what chemicals they are using, हम्म। मतलब I never visited, वो मैंने पढ़ा नहीं जी। कभी ऐसा, but हाँ, ये जनरली लोग करते हैं कि वो वाइप्स लिया एंड दे आर जस्ट रबिंग इट ऑन देयर आईज। एंड हम्म। सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट, लाइक ऐसा करना चाहिए क्या? वो रियली यूजफुल होते हैं या फिर दे आर हैजार्डस? See, wipes you can use, but I would suggest कि मार्केट में अल्कोहल बेस्ड वाइप्स भी होते हैं और वाटर बेस्ड भी होते हैं। तो मेक श्योर कि वाटर बेस्ड वाइप्स यूज करें, बिकॉज अल्कोहल डज कॉज इरिटेशन। तो क्लीन करने के लिए यस यू कैन यूज, आप अपने हाथ से टच करने से अच्छा है कि आप एक स्टरलाइज टिश्यू जो है यूज कर रहे हो, बट दैट शुड बी वाटर बेस्ड। सो यस, यू कैन यूज। Fair enough, ma'am. So a special shout out to all the younger audience, and plus मतलब
ऑन अ वेरी लाइटर नोट, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि बच्चों की आड़ में खुद खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं. सो या डेफिनेटली मैम की एक गई है सामने से एक एडवाइस कि वी ऑल शुड बी प्रेजेंट. ओके मैम, अब थोड़ा सा आई गेस क्रैकर्स बहुत हो गए, बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया रिगार्डिंग पॉल्यूशन क्रैकर्स. नाउ आई वुड शिफ्ट समवॉट टुवर्ड्स मेकअप. एक मैंने एक Towards, प्रैक्टिस देखी है, मतलब इट इज मेकअप पे मैम. मेकअप में मैंने एक प्रैक्टिस अच्छा. देखा है, जो जनरली गर्ल्स Okay. व्हेन दे वेयर मेकअप, सो दे दिस इज हाँ. दिस हैज बिकम कॉमन नाउअडेज. एक लेंस वो लगाते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, हाँ. जस्ट आउट हाँ. ऑफ क्यूरियोसिटी कि जी. इज इट लाइक, सिंस आपने मेंशन किया कि कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगानी चाहिए, सो दिस इज हम्म. दिस आल्सो कॉजिंग सम इरिटेशन, एंड उसका क्या वो रहता है, क्या लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, एंड इज इट हैजार्डस, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सी इट इज द सेम एज कॉन्टैक्ट लेंस ओनली, क्योंकि वो लेंस तो लगेगा ही अंदर से, चाहे उसमें नंबर नहीं है. फॉर कॉस्मेटिक पर्पज पीपल आर यूजिंग इट, so that lens will also cause irritation and you should avoid during this time, especially जब pollution बढ़ा हुआ है. जी. Okay, so again, to all the girls out there, we should avoid it. They should avoid it. जी. Okay, जी. so ma'am, ये तो सारी चीजें हो गई. Definitely, prevention is better than cure. We all know, but God forbid चीजें ऐसी हो जाती हैं, they turn out worse. So, especially since we are situated in Delhi, so अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे initial steps क्या होने चाहिए? Whom to contact, कहाँ पे जाना चाहिए? Are we open? Are we as New Vision Eye Care Center? Are we open on these days on the for the emergencies, and what is it all about? कहाँ पे हम क्या, how to reach out to the in case See, of unfortunately, we are not reachable on the Diwali day, but yes, post Diwali day, we are open. So, starting from 10 o'clock. So, any sort of problems, we are here to help out. But yes, unfortunately, not for the emergencies on the Diwali day. So, you can, I think, probably contact tertiary care centers, AIMS, RP Center, and all. So, those I'm sure will be there to help out. fair enough, ma'am. So just I guess we are towards the end of the session, concluding it. So any conclusion notes from your side, especially for the children and then for the general audience? मनाएं, जरूर मनाएं, पर सावधानी के साथ मनाएं. एंड बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए तो हम लोग है ही. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर. ओके. Thank you so much, ma'am. Thank you so much to the entire team of New Vision Eye Care Center. हाथ जोड़ के हम आपको धन्यवाद करते हैं कि on the day of Diwali, you took out time from your busy schedule and came here for this very valuable and enriching session. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for joining. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. ओके. थैंक यू.